آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ اور آج دنگل ٹیسٹ سیریز 2.0 کا جو ہے وہ ہم لوگ سیکنڈ پیپر یا سیکنڈ ٹیسٹ کا سولوشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں۔ حالانکہ یہ ٹیسٹ ہمارے ایپ پہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ کافی سارے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو اسی پارٹیسپیشن میں یا کہہ سکتے ہیں ایسپیرنٹس میں جو سب سے زیادہ ہائی سکور کیا ہے وہ کیا ہے شیبہ شیخ نے، اس کے بعد سیکنڈ رینک حاصل کی ہے فرحہ نے، اور تیسرا جو بچہ ہے وہ ہے آصفہ۔ اس طریقے سے ندیم احمد نے، کوثر فاطمہ نے، نیہا نے، ہاشم خان نے، اقرار احمد نے اور مہوش پروین نے، شائمہ علی نے۔ تو یہ جو بچے ہیں یہ ٹاپ 10 ہیں جن کا ایگزام ہوتا ہے 200 نمبر کا، جیسے آپ کے نصاب میں بھی ہے اور آپ کا ایگزام پیٹرن بھی ہے۔ ہم لوگ یہاں پر جو ہے وہ اردو کا پیپر جو ہے وہ سولو کراتے ہیں، تو ان تمام بچوں نے کافی اچھا اسکور کیا ہے۔ اگر آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس اپ نمبر 9045220432 پر بھی ہم سے رابطہ کر کے جڑ سکتے ہیں۔ آپ اپنا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام اور دنگل 2.0 لکھ کے واٹس اپ کر دیں گے تو ساری انفارمیشن آپ کو وہاں پر مل جائے گی۔ تو چلیے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اردو کے پیپر سولوشن کی۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوشچن نمبر 1 ہے، حالانکہ یہ آپ کو ٹیسٹ سیریز میں کوشچن نمبر 101 دکھتا ہے، کیونکہ 100 جو ہے کوشچن جنرل پیپر کے ہوتے ہیں اور 90 کوشچن اردو کے ہوتے ہیں اور 10 جو ہے وہ ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کے ہوتے ہیں۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہند آریائی لسانی خاندان سے کس کا تعلق تھا؟ تمل، تیلگو، ملیالم یا اردو؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ یہ اردو سے اس کا تعلق تھا، ہند آریائی خاندان سے۔ اگلا سوال ہے، اردو کا حولیہ سندھ میں تیار ہوا ہوگا، یہ کس کا نظریہ ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، سید سلیمان ندوی کا۔ ان کی ایک تصنیف ہے جس کا نام ہے نکوص سلیمانی، اسی میں انہوں نے بات کی ہے کہ حولیہ سندھ میں تیار ہوا ہے، جو لکھی گئی ہے 1939 میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، نوائے دہلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع اور سر چشمہ ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا، یہ نظریہ پیش کیا ہے مسعود حسین خان نے، اور اپنی تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو میں، جو کب شائع ہوئی ہے؟ 1948 میں جو ہے وہ یہ شائع ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے، شوکت سبزواری کس حیثیت سے مشہور ہے؟ تو 4 آپشن ہے اس میں، صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ وہ ماہر لسانیات ہیں۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 5 ہے، امیر خسرو نے غزنی عہد کے کس شاعر کا ذکر کیا ہے؟ تو اس سوال میں جو ہے وہ 2 آپشن صحیح ہو سکتے ہیں، آپشن اے اور آپشن سی۔ حالانکہ خواجہ مسعود سعد سلیمانی کا کہیں ہمیں ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے جو آپشن جاتا ہے وہ جاتا ہے آپشن 3 کی طرف، یعنی کہ غنی کاشمیری کی طرف۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، ابھرنسوں کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے تھا؟ کوشچن نمبر 6 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ ہند آریائی خاندان سے تھا۔ اگلا سوال ہے، مثنوی پھول بند کس کی مثنوی ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ یہ ابن نشاطی کی کیا ہے؟ مثنوی ہے۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 8 ہے، محمد جیو گام دہانی کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہمنی لکھا ہوا ہے، جبکہ بہمنی نہیں، یہ تھوڑا سا مس پرنٹنگ ہے۔ محمد جیو غام دہنی کا کہاں سے رہنے والے تھے؟ آگرہ، حیدرآباد، ہریانہ یا گجرات؟ اس میں جو ہے وہ 4 آپشن دیے گئے ہیں اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 4 ہو جائے گا گجرات، اور یہ ان کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1565 میں، ان کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے تھا؟ گجرات سے تھا۔ حالانکہ آؤٹ آف سلیبس ہے کوشچنس، تو اس لیے آپ لوگ اسے گھبرائے نہ۔ اگلا سوال ہے، کس کا تعلق بیجاپور سے تھا؟ تو اس میں 4 آپشن دیے گئے ہیں، جس میں بابا فرید گنج شکر، قلی قطب شاہ، امیر خسرو اور شاہ میرزا شمس العشاق ہیں۔ تو بیجاپور سے ان چاروں کا تعلق نہیں ہے، تو اس لیے اس آپشن کو کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر محمد قلی قطب شاہ کے ساتھ یہاں پر علی عادل شاہ ثانی آ جائے گا، تو آنسر کیا ہو جائے گا؟ درست آ جائے گا۔ کوشچن نمبر 9 کا کیا ہو جائے گا؟ اس کا آپشن 2 بھی ہو سکتا ہے اگر اس میں آپشن درست ہو، لیکن یہ آپشن ہی غلط ہے، تو اس لیے اسے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، قصہ مہر افروز و دلبر کس کی کتاب ہے؟ کوشچن نمبر 10 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ عیسوی خان کی۔
और ये कब کی ہے؟ 1770 میں لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 11، حال ہی کی نگاہ میں سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف کون سی ہے؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ مثنوی۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 12، شہزادہ جان عالم کس داستان کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ فسانہ عجائب اس کا درست آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے آمد کس صنف سخن کا جز ہے؟ کوشچن نمبر 13 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 13 کا آمد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مرثیے میں۔ کوشچن نمبر 13 کا آپشن 4 درست ہے۔ اگلا سوال کس صنف سخن کا آغاز تشبیب سے ہوتا ہے؟ کوشچن نمبر 14 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ یہ قصیدے سے ہوتا ہے۔ اگلا سوال کون سی کتاب فضل علی خان فضلی کی ہے؟ کوشچن نمبر 15 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ کربل کتھا اس کا درست آنسر ہو جائے گا، کیونکہ یہ تصنیف جو ہے وہ کس کی ہے؟ یہ تصنیف ہے فضل علی خان فضلی کی تصنیف ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 16 کی طرف، اہیام گوئی کہاں پروان چڑھی؟ کوشچن نمبر 16 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ لکھنؤ۔ اگلا سوال مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب داستان ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4 فسانہ عجائب، جو باغ و بہار کے جواب میں جو ہے وہ کیا کی ہے؟ لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال کس ناول نگار نے تاریخ اسلام کو اپنا موضوع بنایا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ مولوی نذیر احمد نے اپنا ناول کا تاریخ اسلام کو بنایا ہے۔ کوشچن نمبر 18 کا آپشن بی ہو جائے گا، جبکہ عبدالحلیم شرر نے صرف تاریخ کو کیا بنایا ہے؟ اپنا موضوع بنایا ہے، اور ان کو ہی کیا کہا جاتا ہے؟ تاریخی ناول نگار کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 19، اردو شاعروں کا پہلا باقاعدہ منصورہ کس کتاب کو کہا گیا ہے؟ کوشچن نمبر 19 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 19 کا آپشن فرسٹ یعنی کہ مقدمہ شعر و شاعری، جو الطاف حسین حالی کی لکھی گئی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 20، حالانکہ یہ کوشچن جو ہے وہ کس کا وجود فرضی قرار دیا گیا ہے؟ تو یہاں پر جو صحیح آنسر ہوگا وہ آنسر ہوگا کلیم الدین احمد، حالانکہ آپشنس میں نہیں ہے، تو اس لیے کوشچن نمبر 20 کا آپ لوگ آنسر کلیم الدین احمد لگا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 21، مسدس مد و جزء اسلام کو اپنی نجات کا سامان کس نے کہا تھا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 سر سید احمد خان، اور یہ اس کا ایئر بھی لکھ لیجیے گا، ایگزام میں بہت امپورٹنٹ ہے، 1879 میں یہ لکھی گئی تھی مسدس حالی، جو الطاف حسین حالی نے لکھی سر سید کی فرمائش پر۔ اگلا سوال ہے آشفتہ بیانی میری کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یہ خود نوشت ہے، جو 1972 میں لکھی گئی ہے رشید احمد صدیقی کی۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کسے تقدم زمانی حاصل تھا؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ولی دکنی۔ یہ چاروں آپشن کیا ہیں؟ اس میں غلط دیے گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے کس مصنف کے یہاں علی گڑھ کا رنگ نمایاں ہے؟ کوشچن نمبر 24 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ رشید احمد صدیقی اس کا درست آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال شوق لکھنوی کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ کوشچن نمبر ہے ہمارے پاس 25 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سی یعنی کہ وہ ترقی پسند شاعر تھے۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 26، وحدت تعاصر کس صنف سخن کی نمایاں خصوصیت ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ افسانہ اس کا درست آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 26 کا۔ اگلا سوال ہے عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، یہ کس کا مصرع ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا یہ میر انیس کا برسیہ ہے۔ اگلا سوال جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو اس صنعت کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ اسے ہم لوگ تلمیح کہتے ہیں۔ اگلا سوال غنج خوبی کے مصنف کا نام بتائیے، کوشچن نمبر 29 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ میر امن کی تصنیف ہے گنج خوبی۔ اگلا سوال بوستان حکمت کس کی داستان ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ فقیر محمد گویا کی یہ تصنیف ہے بوستان حکمت۔ اگلا سوال سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کہاں قائم کی تھی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3 غازی پور میں۔ کب کی تھی؟ 1862 میں۔ اگلا سوال مندرجہ ذیل میں سے کون سا
नक्काद तरक्की पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जदीदियत से इनहराफ के बाद कौन सी तहरीक या रुझानात सामने आया। क्वेश्चन नंबर 33 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 माबाद जदीदियत। जदीदियत के बानी शमसुर रहमान फ़ारूकी को माना जाता है, जबकि माबाद जदीदियत के जो है वो गोपीचंद नारंग को माना जाता है। अगला सवाल है, जदीदियत ने किस नौए की तनकीद पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 34 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नई तनकीद को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, मंदरजा झेल में से कसीदा निगार का नक्काद कौन है या कसीदा निगारी का नक्काद कौन है। क्वेश्चन नंबर 35 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नियाज़ फ़तेहपुरी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू में तक़ाबुल तनकीद की बुनियाद गुज़ार कौन है। क्वेश्चन नंबर 36 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अल्लामा शिबली नुमानी। और कब डाली, 1907 में। इनकी तसनीफ़ है जो तक़ाबुल तनकीद की पहली किताब मानी जाती है, जिसका नाम था मवाज़ान अनीस व दबीर। अगला सवाल, हयात जावेद किस सिनफ़ से ताल्लुक़ रखती है। तो ये सवाने हैं सर सैयद अहमद ख़ां की, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है 1901 में। अगला सवाल, गालिब ने कसीदे में किस उन्सुर पर ज़्यादा तवज्जो सर्फ की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तशबीब। तशबीब के मतलब होते हैं फ़र्श बिछाने के। अगला सवाल, तजनीस का ताल्लुक़ किस इल्म से है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर 39 में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इल्म बदी में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपको बतानी है कौन सी सनत है। क्वेश्चन नंबर 40 में, वहीद यगाना रियाज़त में थे, जुनेद ज़माना इबादत में थे। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तरसी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, सुमन किस नावल का किरदार है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ये टेढ़ी लकीर का क्या है किरदार है, जो नावल है इसमत चुगताई का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लाजवंती किसका अफसाना है। तो आंसर हो जाएगा ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है लाजवंती, जो तकसीम हिंद के मौजू पर लिखा गया है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन तसव्वुफ़ का शायर था या सूफ़ी शायर था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ख्वाजा मीर दर्द। अगला सवाल, सैर तीसरे दरवेश में शहज़ादों को पनाह देने वाले शख्स का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 44 था तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन 3 शहज़ाद ख़ान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई का मुसन्निफ़ कौन है। क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कलीमुद्दीन अहमद इसका क्या हो जाएगा दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, अजाइबुल कसस का मुसन्निफ़ कौन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शाह आलम सासानी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शेरुल हिंद का मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल सलाम नदवी इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा किरदार उमराव जान अदा का नहीं है, जो नॉवल है। क्वेश्चन नंबर 48 तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नन्ही जान उमराव जान का किरदार नहीं है। अगला सवाल है, नवाब छब्बन किस नॉवल का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 49 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 शाहिद रआना इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, मंदरजा झेल नावलों में से कौन सा नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फसाना मुब्तला। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51, तबक़ात शोराए हिंद किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मौलवी करीमुद्दीन इसका क्या हो जाएगा दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52, अंगारे का मुरत्तब कौन है। क्वेश्चन नंबर 52 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सज्जाद ज़हीर हो जाएगा, जो 1932 में लिखा गया था। अगला सवाल, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली बाकायदा कॉन्फ्रेंस कब हुई। क्वेश्चन नंबर 53 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन 4 यानी कि 1936 इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा, जो लखनऊ में हुई। अगला सवाल, मंगू कोचान किस अफसाने का किरदार है।
क्वेश्चन नंबर 54 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये सादत हसन मंटो का किरदार है। अगला सवाल, इंदु किस अफसाने का किरदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अपने दुख मुझे दे दो का ये किरदार है। अगला सवाल है, इंतज़ार हुसैन की जाए पैदाइश कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 56 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है वो दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, रोशनी किसका अफसाना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। अगला सवाल है, सच और झूठ का रस्मनामा का मुसन्निफ़ कौन है या किसका मजमून है? क्वेश्चन नंबर 58 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59। इसे आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है और इसके जो है वो चारों ऑप्शन भी क्या हैं, गलत हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। गारसा दतासी की पैदाइश किस शहर में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, तहमीना किस मशहूर ड्रामे का किरदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है अनारकली। और पिछले टेस्ट में मैंने आपसे पूछा था कि अनारकली जो ड्रामा है वो किस वक्त पर मबनी था, तो काफ़ी सारे बच्चों ने जवाब दिया था 1599, यानी कि 1599 में जो लाहौर के किले में क्या किया गया था, फिल्माया गया था। काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो इसका जवाब दिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62। हीरोइन की तलाश किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 62 है, आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ये मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है। अगला सवाल, इंद्र सभा का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 63 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अमानत लखनवी। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और था, मैंने आपको बताया था असीर हर्ष किसका ड्रामा है, तो वहाँ पर मैंने आपको इम्तियाज़ अली ताज बताया था, जबकि पिछली वीडियो में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था जिसका आंसर था आग असर काश्मीरी, तो आप लोग उसे भी दुरुस्त कर सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64। उर्दू ड्रामा और स्टेज का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 64 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मीर मेहदी मजरू कौन थे? क्वेश्चन नंबर 65 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि वो गालिब के शागिर्द थे। अगला सवाल, मकर शायराना की सिफत किस शायर के कलाम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मोमिन खां मोमिन इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सी किताब यूसुफ खान कंबल पोश की तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 67 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अजाइब फ़रंग। अगला सवाल, अशरफ बयाबानी की नौ सरहार का मौजू क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 है और इसमें आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि वाक़या करबला से। अगला सवाल है, इसमें आपको जो है वो सनद बतानी है क्वेश्चन नंबर 69 में, और वो है दीवार बार मन्नत मज़दूर से है खम ए खामाए ख़राब ना अहया उठाए। इस शेर में कौन सी सनद जो है वो इस्तेमाल की गई है क्वेश्चन नंबर 69 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इस्तारा। अगला सवाल, निकातो शोरा का साल तसनीफ़ क्या है? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1752। यहीं पर मुझे बताइएगा कि निकातो शोरा के जवाब में कौन सा तज़किरा लिखा गया और किसने लिखा? आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये HW है कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा कि निकातो शोरा के जवाब में कौन सा तज़किरा लिखा गया और किसने लिखा, ये 2 बातें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71। रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि सनीमा का इश्क। अगला सवाल है, मरहूम की याद में किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि पितरश बुखारी का ये मजमून है मरहूम की याद में, जिसमें जो है वो एक बाइसिकल को मौजू बनाया गया है। अगला सवाल, यादगार गालिब का किस सिनफ से ताल्लुक़ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सवाने हैं जो कब लिखी गई, 1897 में लिखी गई। अगला सवाल, मुसद्दस मुद्दजुज़ इस्लाम हाली ने किसके कहने पर लिखी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? आंसर हो जाएगा 3, यानी कि हाफिज़ महमूद शिराज़ी का। अगला सवाल है, गुरेज़
किस सिन्फ सुखन का जुज़ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कसीदे का है। अगला सवाल है, पहलवान सुखन किस शायर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि सौदा को। अगर पूछा जाए पहलवान शायर किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा तब इमाम बख्श नासिक को। अगला सवाल, शायर शबाब, शायर इनकलाब और शायर फितरत किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि जोश मलिहाबादी को। अगला सवाल, मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मीर ज़मीर के। क्वेश्चन नंबर 80, किस शायर ने कोई मसनवी नहीं लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ख्वाजा मीर दर्द ने कोई मसनवी नहीं लिखी, ना ही कोई कसीदा लिखा। अगला सवाल है, किसने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। रुबाई के माहिरीन उरूज़ ने कुल कितने औज़ान मुकर्रर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 24। और आपके भी एग्ज़ाम से जो है वो 24 दिन बाकी हैं। आप लोग 24 दिन में जो है वो अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अब आपके हाथ में कि आप उसे बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं। हालांकि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हैं। हालांकि इस टेस्ट में कुछ खामियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग आपको उस तरह का या उस लेवल का या उस स्टैंडर्ड का टेस्ट प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्निकली हम लोग जितना हो सकता है उतना आपको जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कम चीज़ों में अच्छे संसाधन के साथ या अच्छे संसाधनों के लिए काम करना भी एक बहुत मेहनत का काम है। और कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही सब्र के साथ इस टेस्ट सीरीज़ में या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन तमाम बच्चों का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उर्दू को फ़रोग़ देने में बड़े इत्मीनान से और बड़े सब्र के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसकी जो फ़ीस है महज 149 रुपये है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में काबिल तारीफ़ हैं, जो वाकई में अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे लोगों को क्या करना, क्रिटिसाइज़ करना कि इतना काम करते हैं, इतने बड़े यूट्यूब वाले हैं, इनसे ठीक से टेस्ट नहीं लिया जाता है, आंसर्स गलत हो जाते हैं या इनको सही तरीके से चीज़ों को मैनेज करना नहीं आता। लेकिन आप लोग देखेंगे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनसे भी सवाल होते हैं, उनसे भी मिस्टेक होती हैं, उनसे भी क्वेश्चन जो हैं वो आंसर गलत फिल हो जाते हैं। आप DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो उसमें क्या मिलेंगे, डिलीटेड मिलेंगे, क्योंकि उनके आंसर सही नहीं थे या उसमें सवाल जो हैं वो गलत थे। तो इस तरीके से गलती होना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती है। और हम लोग इतने परफेक्ट नहीं हैं कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, लेकिन जितना हमसे हो सकता है कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम लोग जो है वो आपको क्या कर सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारी यही कोशिश होती है कि कम पैसों में आपको जो है वो अच्छे से अच्छे तालीम दी जाए। तो इसीलिए आप लोग जो है वो थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अगर 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है ऑनलाइन टेस्ट में, तो मैं उसे अगले वीडियो में क्या कर देता हूँ, उसका करेक्शन कर देता हूँ। या फिर आप लोग अगर हमारे ऐप से जुड़े हुए हैं तो हम वहाँ पर भी उसका सोल्यूशन आपको हैंड टू हैंड प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। दास्तान बूस्तान ख़याल किसकी तसनीफ़ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर तकी ख़याल की ये तसनीफ़ है, दास्तान बूस्तान ख़याल। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन 2। अगला सवाल, हुस्न दिल किस दास्तान का किरदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सबरस का। अगला सवाल, हबीब तनवीर ने किस ड्रामे में गालिब की ज़िंदगी पेश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन 2। अगला सवाल, इस्मत चुगताई का पहला नावल ज़िद्दी कब शाये हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1941 में। अगला सवाल, उर्दू अफसाने का आगाज़ कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 87 है। इसके 4 ऑप्शन हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 19वीं सदी के आखिर में। अगला सवाल, उर्दू का पहला रोमानी नक्काद किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 88 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी। अगला सवाल, उर्दू तनकीद का मामार अव्वल किसे कहा जाता है? हालांकि आंसर यहाँ पर आपको जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली लग रहा होगा, जबकि आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, क्योंकि इन्होंने ही उर्दू की पहली जो है वो तारीख़ लिखी है, जिसमें इन्होंने तनकीद भी की है
और वो है आब हयात, क्योंकि तनकीद का ज़िक्र हमें तज़किरों में ही मिलता है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? क्वेश्चन नंबर 90 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कलकत्ता में। कब किया गया? 1800 में। तो ये हो गए आपके 90 क्वेश्चंस, क्योंकि आपके उर्दू वाले पोर्शन में 90 ही क्वेश्चंस आएंगे। और ये टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप पर शुरू होती है। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो आप लोग जुड़ सकता है। 9045220432 पर होती है, डेली होती है। सिर्फ एग्ज़ाम तक होने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम तक आपकी टेस्ट सीरीज़ जो है वो चलती रहे। आप लोग भी इससे जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और आप दंगल टेस्ट सीरीज़ 2.0 लिख के जो है मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इसके बाद हमारे यहाँ पर जो है वो इसके टीचिंग मैथोलॉजी के सवाल शुरू हो जाते हैं, जिसका सोल्यूशन जो है वो आपको ऐप पर कराया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।